So, hello and a very, very good evening, YouTube. And we're going to be trying something really different today. I'm not going to say funny or weird. Different. Helmet पहन के कैमरा लगा के कार चलाते हुए vlog, because obviously the topic is about a car. I thought कार में करेंगे. And as you can see, this is my daily driver baby, my Laura TDI with a CR170 turbo and lots of upgrades. Khair, this video is not about this. So beautiful part of town we are in, new city, अपनी नालेज सिटी के पास. And let's, oh my god, I just hope the lens is clean and the angle is okay. So yeah, without further ado, let's go for a short drive and talk to you about my Volvo saga. Right off the bat, let me tell you, it feels extremely funny. हेलमेट पहन लेके गाड़ी चला रहे हैं सो, एंड लोग भी देखे अगर खैर किस्मत बारिश हो रही, गाड़ी के अंदर का उतना नहीं दिखता हूँ, अगर लोग देखे भी तो बोलते क्या हाईलाइट छूतिया हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहा हो बोल के. खैर लाइट है. सो यप, द वॉल्वो सागा. सो वेयर डू आई बिगिन? So as you all know, I ventured into cars. Then my most successful build that gave me the most name was my Laura TSI, also known as an Octavia Mark II in international markets. And after that, I was looking for a new project because 70,000 kilometers in around 2 years of ownership of that car. Pretty insane feat I hit. And वाकई ज़बरदस्त गाड़ी थी. It was a money pit, yes, काफ़ी पैसे खाती थी. But कभी रोड पे पैदल नहीं करी. And you know, I had some great times. I took it to Kanyakumari, I toured, I raced, I did so much shit in that. It was a very nice learning curve. खैर fast forward, उसके बाद से मेरे को सडन खुजली हुई, as in all things, कि let's upgrade. अपन तो मिडिल क्लास आदमी, 30-40 लाख का अपना बजट है नहीं. बजट था 10 लाख के अंदर ही खेल लेने का. So, you know, started hunting and, you know, 530D, the obvious choice of a lot of people. But again, वो टाइम पे अपने को डीजल का उतना वो नहीं था. And I knew for a fact कि, you know, BMW बोलते ज़रा मेंटेनेंस वाइज भी heavy और थोड़ा गांड में दम. And, you know, the biggest thing, relatively a common car, a lot of people are modding it out. So I was looking for something rare in that price with, you know, good tuning potential and relatively easy on the pocket. But so fast forward, one fine day I visited a friend of mine randomly. उसके पास एक गाड़ी रखी हुई थी, Volvo S60 T6, a very rare thing. I did not know, and that car was up for sale. He told me, you know, just take it for a drive. And then as soon as he told me the specs, I was like, fuck, how come I've never heard of this car? On paper it sounds beautiful. 3-liter inline 6, Haldex all-wheel drive, torque converter gearbox, and it's a Volvo, so pretty much indestructible and interior comfort. It felt like a proper upgrade from, you know, coming from a Laura TSI. तो गाड़ी का एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लिए and I was sold. The feel that car gave me, as you all know, bikes and cars में भी अब मैं क्रॉस प्लेन का भी इतना दीवाना क्यों हूँ? It's not because it's the most powerful or it's the most best handling, whatever. A lot of cars that bikes that do it better than that, but the feel, गाड़ी अपन चलाते फील के लिए प्राइमरीली, वो गाड़ी की जो फील थी वॉल्वो की, I was like fuck, that was what was that sold me out. कि भाई लेना है तो अब ये गाड़ी लेना है. Hunting started. And mind you, जिसके पास अपन वो Volvo देखे is considered the Volvo expert of one of the Volvo experts of India. वो नाम मैं नहीं लेता हूँ because फिर पिंडा लीगल ट्रबल में चले आऊँगा मैं, केस वेस हो जाएगा मेरे ऊपर, घर पे से उठा लेंगे मेरे को. But yeah, the biggest red flag जो कि मैं जब ही समझ जाना चाहिए था कि, you know, at the place where, you know, Volvo के the hub of Volvo Mage, there were around 4 or 5 dead Volvos which were sitting since years, months, जो कि आज भी 2 साल हो गए बट अभी भी वही हालतों में पड़े हुए हैं. So, you know, that should have been one big red flag for me. And even the car that I saw was facelifted, this, that, whatever, but, you know, price was steep and nobody was really buying it. उसकी मार्केट उतनी थी नहीं. तो खैर अपन लाइट उतना डीप में नहीं गए, जब होना तो होना, जिद कैसी चीज़ रहती मालूम है ना. So yeah, the hunting began, and finally I found a car in Chennai of all the places, and it was a MH car,
तो अपने लिए MH बोले तो ये आई इन चेन्नई, प्राइस भी अच्छा था, कुप्पा रेट में 6.5 लाख रुपए में अपन गए, गाड़ी देखे, ऊपर राइड ऑफ द बेड, इट डिडंट फील फनी एट ऑल और ले लिए. The only issue was that the car had done around 1,07,000 kilometers on the odo. Pretty famous guy's car. और मैगजीन में भी आई थी. So like, what's the worst that could happen? और अपन उठा लिए. And again, I don't believe in all these things, but वाकई रेड कलर की वॉल्वो थी. रेड हैज़ somehow never been lucky for me. I've had really bad experiences on red colored bikes as well. मेरा एक्सीडेंट भी CBR पे जो हुआ है वो रेड कलर्ड बाइक, एंड इससे पहले एक बार डुकाटी पे हुआ था ट्रैम्प पे, चुटमुट इंसिडेंट्स. somehow red doesn't sit with. खैर अपन उतना सोचे नहीं, गए चेन्नई, गाड़ी ले लिए, drove back to Hyderabad. And that was probably the longest drive I've had in that car. 700 kilometers. I was fucking loving it. बीच में एक जगह स्टार्ट होने सताई, but okay. Fast forward, as soon as I came back to Hyderabad, बिना सोचे समझे ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का पूरा सस्पेंशन का सामान ये वो मंगा लिए, इंटरकूलर साफ़ करा लिए, सब कर लिए. 1.5-2 लाख रुपए की भैरी घुस गई. And I knew for a fact that any machine older than 5 years, 6 years and 1 lakh kilometers on the odo, you have to do certain heavy major maintenance. Coming from a Skoda VW group, I know 1 lakh पे timing की, flywheel की, there are certain things. इसमें से timing is one of the most important things that you're supposed to do. Even if it's like a chain system, what happens is chains अच्छे रहते हैं. मैकेनिक हम बोलते हैं अरे भाई चेन कभी ख़राब नहीं होती. Yes, चेन कभी ख़राब नहीं होती बाबा, but the plastic guides that it has, the sliders that attach to the chain itself, they are plastic. कितना भी कर लो, plastic over a period of time, over a period of heat cycles, it gets brittle and you have to change those guides. वो एक मेजर मेंटेनेंस का काम बचा हुआ था, which I skimmed on. And when I asked the Volvo expert, they were like, oh, it's not a Skoda, it's a Volvo, the chain, it's indestructible, nothing will happen, it's sealed for life. Yes, online भी they say timing chains are sealed for life, but भाई तकरीबन जने US UK में चलाते जहाँ पे लाइफ मतलब 10 साल के अंदर गाड़ी 5-6 लाख 10 लाख किलोमीटर चल के मर जाती. अपने पास 10 साल में 1 लाख चली तो बहुत बड़ी बात है. तो कैसा घुड़ता गया अभी ने. तो यस, वो एक चीज़ छोड़ के बाकी सब करा लिए थे. स्टिल द कार यूज्ड टू बिहेव फनी. कभी आइडलिंग में नाचती थी, कभी बुरबुराती थी. somehow I had a feeling that some work was done to the car. I would never know because इंजन तो सील्ड था, बट हेड में कुछ काम हुआ बोल के ऐसी फीलिंग थी. देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग. दैट कार had so many issues inherently. It's unnecessarily complicated. जैसा उसमें there's no belt system because उसका transverse mounted engine है, so it has a reed assembly which drives everything. Gear assembly वो ख़राब हुई तो पूरा खोल देना पड़ता है, and there's no space to work in the engine. And again, Volvo being Volvo, सामान आने बहुत टाइम लगता था. तो बोले चलो खैर मेजर सर्विस सब हो गई. Let's start going around. I put a full system exhaust जिसकन से ख़रीदा और it had a lot of retrofits. They gave me the V-dash interface with it, so I could flash and do everything on it. अच्छा खासा सीख लिया अपन. But yeah, around a month into ownership, खैर गाड़ी लेके आए बाद से 1 महीना तक तो बना ही अपन. उसके 1 हफ्ते 10 दिन में one fine day I was not even pulling it, not even going hard. Already high speed runs कर लिए थे उस पर. Done बोल के स्विंग मशीन की आवाज़ है इंजन में से. नाउ आई न्यू, माई हार्ट न्यू वो आवाज़ क्या है. व्हेन इंजन स्टार्ट्स मेकिंग स्विंग मशीन साउंड्स एंड यू हैव अ लॉस ऑफ पावर, दैट मीन्स बेसिकली यू आर फक्ड. बट दिल मान रहा नहीं था बिकॉज द एक्सपर्ट टोल्ड मी कि कभी कुछ नहीं होने वाला है. एंड मैं भी सोचा भाई ऐसा कैसा दन बोल के टेंशनर वेंशनर फेल होने का इसमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड तो है नहीं, लाइक TSIs. बट या गाड़ी डेड हो गई, गाड़ी उठाए टो करे, एंड पीपल वेर इन डिनायल. द एक्सपर्ट्स के इट्स इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता. फाइनली आई डिड अ कंप्रेशन टेस्ट. 0 इन द फर्स्ट 3 सिलेंडर्स. आई वाज लाइक लग गए. उसके बाद कैमरा डाल के अंदर देखे प्रोब से, देयर वाज वाल्व टू पिस्टन कॉन्टैक्ट. आई वाज लाइक फक, समथिंग्स गॉन रॉन्ग विद द टाइमिंग पार्ट ऑफ द थिंग ऑब्वियसली. उसके बाद ऑलरेडी पैसे खाली हो गए थे, मनूसियत लग गई थी.
गाड़ी ठहर गई. फास्ट फॉरवर्ड 3 months, ऑर्डर्ड ऑल द इंजन पार्ट्स बिकॉज उसका सेकेंड हैंड में इंजन मिलना भी इम्पॉसिबल था, यू नो, सो यू हैड टू रीबिल्ड इट. खुला है अपन चेक इंजन्स पे देखे, हेड की माँ छूट गई थी पूरी. न्यू वाल्व्स, ऑल न्यू सील्स, ये वो करके और 1-1.5-2 लाख रुपए लेथ मशीन ये वो सब मिला के हुआ. एंड 6 महीने ऑलमोस्ट लग गए, बनाए गाड़ी, रेडी करे. As soon as we started up the car, everything was fine and all. It was a journey. But again, it started smoking, white smoke with oil smell at weird RPMs. हार्ड पुल के बाद डिसलेरेशन पे कर रही थी, आइडलिंग कभी नाच रही थी. यू नो दैट कार नेवर रियली रन राइट नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट. फकिंग हेल, दिमाग लगा लिए, सब कर लिए, पूरे चीज़ें चेक कर लिए, पीसीवी बदल लिए, कर लिए. वाज सो फकिंग फ्रस्ट्रेटिंग. डन. मैं बोला आखिर में छोड़ो, अब जो हुआ हुआ देखेंगे, चलेंगे तो सही. फास्ट फॉरवर्ड, टुक इट टू अ कॉलेज फेस्ट जस्ट टू शो इट ऑफ. And on the way back it started overheating and I drove it like that out of frustration and it completely fucking died on me. तो head warp हो गया, valves bend हो गए, क्या हुआ God knows. The head gasket was all fucked and leaky. Then गाड़ी फिर से ठहर गई. I didn't have any patience to, you know, go ahead, open up the engine, check it again. Coils melt हो गए थे उसके, you know, that's how fucked up that was. I was like fuck. छोटा सा पुल. Sounds nice. But yeah, zero patience to do anything. रोज सोचे क्या करेंगे, सेकेंड हैंड इंजन दुबई से अरेंज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ. अल्टीमेटली 2 लाख रुपए में गाड़ी स्क्रैप कर दी है. एंड यू नो that's that of it. I was glad that because everyone told me कि वॉल्वो एक बार बुझ गई तो नहीं बन सकती. should have listened. अपन जिद पे जाके बनाए, जिंदा करे, 15-20 दिन ही सही गाड़ी चलाए, उसके बाद फिर बुझ गई. तो you know that was an achievement in itself for me, but extremely expensive. all in all 3.5-4 लाख रुपए घुस गए इन यू नो पार्ट्स, दिस दैट. एंड फिर गाड़ी लिए थे अपन 6.5 में, वो तो बुल्ले में गए. 2 लाख रुपए में गाड़ी स्क्रैप हुई. एंड आई टेल यू वो गाड़ी जितना टाइम थी मनुष्यत, फाइनेंशियली आई वाज फक्ड. कुछ भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रहे थे. रियली रियली बैड प्लेस. वो गाड़ी फाइनली बिकी. जिस दिन बिक रही थी, आई शिट यू नॉट, आई वॉज पुशिंग द कार टू मूव इट, टू गेट इट टू, यू नो, ऑन टू द टोइंग थिंगी. ढकलते ढकलते भी कीचड़ में पैर फिसल के अंधे मुँह गिर गया मैं से. जाते जाते भी वो गाड़ी गाड़ में दम करके गई. तो आई डोंट नो इफ इट्स वाज जस्ट दैट कार या वॉल्वो इन जनरल भी फक्ड अप है. बट या भाई, ज़िंदगी का सबसे बड़ा नासूर हो गया था वो गाड़ी मेरे वास्ते. यू नो, pretty fucked up experience. But yeah, as soon as I sold it, R1 आ गई, good things started happening. जो काम अटके हुए थे महीनों से, सालों से, पूरे हटना शुरू हुए. slowly getting back on my feet. So yup. और हमारे पास कार वर्ल्ड में, as you all know, बहुत चाहने वाले मिल गए थे अपने को हैदराबाद के. So you know, lot of people had this on them. Even today, अभी भी मैं कुछ भी वीडियोस डालो, इंस्टा डालो, तो भाई वो लोगों का क्या हुआ, भाई वो लोगों का. Let me tell you guys, अल्हम्दुलिल्लाह इतने भाई का लिया, बेचा, बल्ले के पैसे कमाया, बल्ले का मज़ा उठाया, कारों में भी बहुत मज़ा लिया. 70 हज़ार किलोमीटर चला के आई डिड थिंग्स विच पीपल कांट इवन थिंक ऑफ डूइंग. भाई TSI 70 हज़ार किलोमीटर ट्यून चला के पूरा इंडिया फिरना वेरी डिफिकल्ट टास्क. अपने को बुल्ले के बातें करने की आदत नहीं है. बट यस, जिंदगी का वो एक बड़ा फेलियर हो गया अपना वॉल्वो. एंड वॉल्वो का क्या हुआ, बुल्ले मिल गए भाई, घुस गए, पैसे भी घुस गए. बट इट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व, सीखने को मिला. Shit. So yeah, सीखने को मिला. Very expensive but fuck all learning curve. So yeah, that's that for the Volvo journey. I sent it off. जो जने लिए उन्होंने दुबई से इंजन मंगाता हूँ, ये करता हूँ, but apparently उनको भी गाड़ी सता रीच. So you know, that's the end of the Volvo chapter in my life. So yeah, would I suggest anyone to get that car? Absolutely fucking no. गांड मुझ के जाओ, स्कोडा VW ग्रुप की कौन सी भी गाड़ी आप बेसिक्स उठा लो, 3 लीटर एक हद में बन जाती गाड़ी. बिकॉज मैकेनिकों को उसकी नॉलेज है, आपको सेकेंड हैंड में फिर भी सामान मिल जाता. बट व्हेन इट कम्स टू these Volvo cars, especially this T6, was super rare. Around like, I don't know, 20-30 cars in the entire country, because that's not a Polestar. That was a T6 that only came in 2012 with a 3-liter inline 6 turbocharged engine. The later iterations, the Polestars came with 2-liter twin charged engines. So you know,
प्लीज़ मत लो, ले रहे तो भी कम चली हुई गाड़ी में भी ले रहे तो यू नो बी प्रिपेयर्ड टू, आपको पैसे भी ज़्यादा जाने वाले हैं, 2-3 महीने रुकना भी है सामान के वास्ते। आई शिट यू नॉट, थोड़े जगहों पे अब तक मेरे पेमेंट्स पेंडिंग है वो गाड़ी के। इट वाज दैट सच अ फक्ड अप एक्सपीरियंस। खैर लाइफ में एक बार होना था ज़रूरी, हो गया, बस बुल्ले लगे बट निकल गए बाहर एंड यू नो आगे जाके छोड़ देंगे। सो या, so my advice to everyone, what I took away from all this is, one project ले रहे तो be prepared to spend shitloads of money, shitloads of time on it, and जिद पे मत बैठो, कोई चीज़ नहीं हो रही एक पॉइंट के बाद छोड़ दो। ज़्यादा उसमें डीप में गए कि नहीं जिद पे मेरे को करना ही चाहिए, जो कि मैं करा, मेरे को जिद थी कि यू नो नोबडी इज डन इट, आई वांट टू फकिंग डू इट। उसमें हमारे लौड़े लग गए, पैसे घुस गए, टाइम चले गया, मनुष्यत लग गई, यू नो। दैट मनी दैट आई गॉट आफ्टर सेलिंग माई TSI वाज मच बेटर इन्वेस्टेड इन से अपग्रेडेड ऑक्टेविया TSI और सुपर्ब TSI और इवन 320D फॉर दैट मैटर। कैसा तैसा करके अपन हाथ पैरा मार लेके एक TDI खरीदे डेली कम्यूट को, बिकॉज बुल्ले का वो वॉल्वो बनाने के वास्ते हैड एन एरोक्स, वो एरोक्स पे जाना आना नहीं हो रहा था, तो यू नो गॉट दिस फॉर अ ब्लडी स्टील डील। एंड स्कोडा, आई टेल यू स्पेशली दिस TDI भाई, ज़ीरो मेंटेनेंस, बोल रहा ना बुलबुल का बच्चा है। दिस विल नॉट, आप बेसिक थोड़े चीज़ां करा लिया ना, इन्हें बेचारी गरीब कभी ना कुछ खर्चा देती ना सताती, माइलेज का माइलेज, बिकॉज इट्स गॉट द डेविल्स इंजन, द डीजल गेट इंजन। खैर दैट्स अ टॉपिक फॉर सम अदर टाइम। सो द पावर एंड द एफिशिएंसी यू गेट इन दिस अनबीटेबल। येस, it's not as, you won't be as unique on the road, but then ultimately गाड़ी आपकी है, आपको फिरना है, आपको चलाना है, comfort is important। ये वन ऑफ प्रोजेक्ट्स भाई, जब you know देख लो, जब उसके सो कॉल्ड गॉड्जिच पैदल होके बैठे हुए हैं गाड़ियाँ खुल लेके नहीं बना लेके, तो आपको यू नो इट वाज लाइक अ क्रैश कोर्स फॉर मी। वॉल्वो वाज समथिंग एंटायरली न्यू फॉर मी, टुक मी 3 to 4 months टू लर्न एवरीथिंग फट उतना करके अपन खुद कीड़ा है, अपन खुद मैकेनिक बन गए, बोल के भी बनी उतनी गाड़ी। और मैं तो बोलता हूँ कम में छुट गया भाई मैं। सो यू नो इट कुड हैव गॉन अ लॉट वर्स। फनी दिख रहा है हेलमेट पहन के चलाना। सो यस, वॉल्वो से दूर रहो, इट्स गॉट शिट टन ऑफ प्रॉब्लम्स, शिट यू नो सामान की भी प्रॉब्लम एंड ऑल। यू आर वेल वर्स्ड विद द अदर जर्मन ब्रांड्स। एज अ प्रोजेक्ट कार आप जा रहे हैं तो BMW जाओ, मर्सिडीज, ऑडी ले लो एक हद तक, एयरमैटिक सेट के आपको ज़्यादा कुछ गाड़ में दम रहेगा नहीं, बट डोंट गो फॉर दिस शिट। एंड या वॉल्वो जाने के बाद से ये TDI बना लिए, दिस बिकेम अ प्राइमरी। एंड फिर आई वांटेड टू पिक अप अ पजेरो स्पोर्ट, बट ऊपर वाला इंटरवीन करा, हमारे दोस्त इंटरवीन करे, बाइकिंग में वापस आओ, बोले यू नो दिस हैज़ बीन माई कंफर्ट जोन सिंस ऑलमोस्ट 3-4 years। ज़बरदस्त धारकारी म्यूजिक सिस्टम है, नहीं बजा सकता हूँ, कॉपीराइट के ऐसे शॉर्ट हुआ था, बट या क्रेजी ट्यून्स आई लिसन टू, आई टूर, आई ट्रैवल। ये कंफर्ट जोन की आदत हो गई, वेट भी पुट ऑन हो गया है ना। सो getting back on bikes now, bought the R1 and maybe somewhere down the line I'll pick up an SUV. ये LoRa तो रहेंगी, because trust me, the LoRa has been one of the most beautiful chapters of my life. TSI TDI दोनों own करे, fucking beautiful car, value for money, हर चीज़ है गाड़ी में। खैर that's a topic for some other time. So yeah, I think that pretty much sums up my overall Volvo experience. And do comment down below if you guys want me to do some more vlogs of this type, कार चलाते हुए हेलमेट पहन के। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ टास्क, बट इसमें भी मज़ा आ रहा है, यू नो। मैं भी कुछ M4 GIM4 किसी दिन चलेंगे, वीडियो बनाएंगे। एंड यू नो कार्स भाई 30-40 लाख का बजट रखे तो ये आप धारू कारों में खेल सकते हैं, अदरवाइज इट्स जस्ट फकिंग यूजलेस। It's too much of a pain. End of the day, you'll always be playing in the 13-14 seconds mark. That's like much less than a 600cc, you know, something like a 300-400cc की quarter mile timing है वो। So yeah, बाइक्स अपनी पहली मोहब्बत, अपने को ज़्यादा अच्छा सूट करती। एंड या तो जितने भी जने कमेंट हो में उसमें वॉल्वो का क्या हुआ, देख लिए वीडियो तो जवाब मिल गया होगा। एंड आप लोगों को जितना दुख हो रहा, ट्रस्ट में, उससे ज़्यादा मेरे को दुख हो रहा, मेरे चाहने वालों कि मेरी वाट लग गई, बट इट्स ओके। Comment down below if you want me to make a video on the 2-liter TDI or whatever cars I've been driving or owning
और यू नो काफ़ी लोगों के, अब श्री राम है, उसकी वेनम 600 द फास्टेस्ट 2 लीटर इन द कंट्री, वो है। एक RS7 है, ट्विन टर्बो R8 बनी है हमारे पास। यू नो आई कैन पुट अ लॉट ऑफ कार कंटेंट, बट इफ़ यू गाइज वांट टू वॉच इट। बाइक्स का तो हमेशा रहेगा, कार्स का भी छुटमुट डालते रहेंगे। एंड आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स, लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इंस्टाग्राम के रील्स भी अपन पुराने वाले जो थे वो शॉर्ट्स के साथ अपलोड कर रहे, सो दैट यू नो दो लोगों को मालूम पड़े अपन क्या क्या करे सो है after in this 4 years break. So yeah, do comment your inputs whether you like this format or not. I think that's about it. घर को जाएंगे, बारिश कुप्पा कर दे रही. So thank you for watching and bye bye.